Hello students, hope you all are good. Myself Divya Kachava from St. Austin Senior Secondary School. Meet our principal ma'am, Mrs. Rama Asnani ma'am, and our school counselor and psychologist Mr. Abhishek Paryar. Looking for the current scenario, we all know that students are going through very difficult time. Although many of the students had done great efforts to cope up their online class. We have shared a link on 8th of August regarding the students' behavior during online classes. Many queries were shared by the students. So here are we to answer all your queries. We'll try to solve most of the queries. So let's start. It's from 9th class student that he is not able to do his assignment before, and many pending is going on of his assignment and notes and all. So we all know that school are reopening. So how will be doing his work? Will teachers will scold him, or he is afraid of that? So what are your views, ma'am, principal ma'am? Thank you, Divya, for sharing me this question from parents or students. Thank you. I know there is a pandemic situation regarding COVID. We faced many problems regarding COVID. Right. Teachers, students, and parents. All three are facing many problems. You know? But there are many problems, we all know. But our goal is to complete our syllabus, to complete our studies, है ना, to अपनी studies पे ध्यान देना, है ना. This is our main goal. So you have no worry, no need to worry to complete your homework in time. You can take time 1 week or 15 days or more than. जैसा आपको अपनी टीचर कहती है आप लोग टाइम ले सकते हैं एंड यू कैन कंप्लीट योर होमवर्क. नो नीड टू बी एफ्रेड. डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. और देखिए मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी. इफ़ वी डू आवर होमवर्क इन टाइम वी आर मोर प्रैक्टिसाइजिंग अवर हैंड राइटिंग. हमारी हैंड राइटिंग में सुधार आता है ना. वी मोर कंसनट्रेट ऑन आवर स्टडीज़ पे हम कंसनट्रेट कर सकते हैं एंड वी कैन कंसनट्रेट ऑन ऑल ओवर थिंग्स बहुत ज़्यादा. सो वी शुड कंप्लीट आवर होमवर्क इन टाइम. दिस इज़ माई आंसर टू स्टूडेंट्स और पेरेंट्स. या Thank you, ma'am, थैंक यू. for answering the common problem of students. Yes. Because nowadays all students are very like that. That classwork is also there, homework is also there. This problem. Ma'am, actually, you're absolutely right. They should not be worried about anything. Yeah. If first of all, the thing is this: कि work should not be pending. Right. They should try to complete the work. But still, due to many reasons, due to this pandemic situation, if somehow pendency is increased, so they should not be worried and they should try to cover the work as soon as possible. Yeah, you're absolutely right. Yeah. Next. Next query is very common question from parents side, that when students are doing homework or watching videos, they generally shift to surfing internet or playing games or using social media also. Right. So I think what are your views, Mr. Abhishek sir? Ma'am, getting distracted through social media or games is very obvious thing and it's a very natural habit of anyone. Even if we look at ourselves, अगर हम खुद को भी देखते हैं तो ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं and once we get stuck into social media. For example, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और instantly अगर एक बार भी WhatsApp का कोई मैसेज आ जाता है, once we get into that तो we get stuck into that. तो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल बिहेवियर और बच्चों के साथ भी ये होगा बिकॉज सोशल मीडिया हुआ या गेम्स हुआ, दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड दे अ काइंड ऑफ एडिक्शन डेवलप्स इनटू अ स्टूडेंट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जाना चाहेंगे बिकॉज दे आर डिजाइंड इन सच अ वे कि आप रिपीटेड आए उसके ऊपर. सो माई सजेशन इज़ कि अगर इफ़ यू रियली वॉन्ट टू वर्क एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जो भी PDFs वगैरह फाइल्स हैं या वीडियोज़ हैं हो सके तो उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड देन यू शुड वॉच कीपिंग इट ऑफलाइन. That is the one situation. Beyond that, I will suggest them कि थोड़ा अपना सेल्फ को इंक्रीज कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए
कि नहीं, you should not get distracted with all these things because this is the solution. Yes, you can go for that, but the best thing is कि अपने आप को make yourself strong enough not to get distracted with all these things because during this course of life ऐसे बहुत सारे distraction आगे भी आएंगे life के अंदर, so you should be strong. Next query is from Mr. Hem Singh Bharti. He was having complaint that, not complaint, he was having question like schools are not open and students are not coming physically, so they are going lazy and they have gained weight also. So for that timetable there was a question that they can increase the yoga classes or something. So what are your views about for Hem Singh Bhatti is a student or parent? Parents. One of the parent? Yeah, Yo. one of the parents. So respected Hem Singh ji, Bhatti ji sir, though we have many online classes, exercise classes, which were conducted by the Vipin sir, and many online classes for class 9th or onwards, or for 6th class also, for 7th class also. If we need some more classes, some more yoga classes, then I will ask to the concerned teacher and I will inform you. But one thing I want to share to all the parents, if you want to exercise, आपके students exercise करें, yoga class करें, तो students must help their parents in household works. स्टूडेंट्स को अपनी माता के, पिता के घर के कार्यों में, अन्य कार्यों में दखल अंदाजी देनी चाहिए, उन्हें कार्य करना चाहिए. दे मस्ट डू हाउस होल्ड वर्क्स, अदर वर्क्स, एक्सरसाइज लाइक स्पीकिंग, स्किपिंग एंड जंपिंग एंड ऑल अदर एक्सरसाइज. घर से बाहर जाना, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, और घर पे आना और कटिंग द वेजिटेबल्स, एंड इंटरेस्ट इन कुकिंग एंड अदर हॉबीज़ ऑल्सो इन आर्ट. ये अगर वो कार्य करते हैं तो वो लेज़ी नहीं होंगे, है ना. मैनी डेज बिफोर आई सॉ ए वीडियो, एक छत पे एक वीडियो था. दे ड्रॉ द लाइन्स एंड ड्रॉ ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड छत पे बनाया था, और स्टूडेंट्स फॉलो द रूल्स एंड वो वहाँ पे जंपिंग कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर हम भी कुछ ऐसा बच्चों के लिए अरेंज करते हैं, बिकॉज फॉर फीमेल्स, फॉर गर्ल्स, कुकिंग इज़ नेसेसरी, वी ऑल नो, है ना. बट फॉर मेल्स, है ना, फॉर बॉयज़ स्टूडेंट्स, कुकिंग इज़ नॉट नेसेसरी. बट इन दोज डेज़ अगर बच्चे बाहर जाते हैं 12th के बाद में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, दे नो हाउ टू कुक द फूड, है ना. तो उनको आना चाहिए, उनको आटा गूँथना भी आना चाहिए, उनको सब्जी बनाना भी आना चाहिए, और भी घर के कार्यों में रुचि रखनी चाहिए, बिकॉज उनको अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करनी है. सो स्टूडेंट्स लेज़ी नहीं हो, बच्चे आपके लेज़ी नहीं हो, आपको खुद को इसमें थोड़ा सा बच्चों की तरफ ध्यान देना होगा, उन्हें दूसरे कार्यों में भी आपको इन्वॉल्व करना होगा. यस, राइट. व्हाट डू यू थिंक? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर हेम सिंह जी भाटी कि वो अपने बच्चे की लाइफ में इतने अच्छे से इन्वॉल्व, एंड ही इज़ वरीड कि वो लेज़ी हो रहा है और उसकी हेल्थ बढ़ रही है, एंड ही इज़ हैविंग सम इफेक्ट ऑन हेल्थ. द क्वेश्चन वाज कि हमें योगा क्लासेस इंक्रीज करनी चाहिए. तो आई कैन सजेस्ट वन थिंग कि एनीवेज वी आर हैविंग वंस अ वीक वी आर हैविंग अ योगा क्लासेस. तो सर आप ये कर सकते हैं कि उस एक दिन में जो सिखाया जाता है उसको आप हफ्ते भर तक कर सकते हैं. इसमें टीचर की या क्लास की ज़रूरत ही नहीं है. आपको एक दिन जो सिखाया जाता है आप उसको एक वीक कीजिए, नेक्स्ट वीक वापस सर आएंगे और कुछ दूसरी एक्सरसाइज या दूसरा आसन सिखाएंगे, एंड यू कैन कंटिन्यू प्रैक्टिस दैट फॉर नेक्स्ट वीक. सो यू शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्कूल. Still, I am not saying कि we are not going to do. We are definitely try to, as ma'am said कि we are definitely try to increase the classes. But still, I will say कि जितना है अगर हम उसको भी repeated करें और हम अपनी तरफ से conscious effort करके करें तो definitely we are going to get benefited. Yes, sir. Yes, sir. As a timetable, we have to balance all the games things. Right. and studies also. Right, ma'am. So, I hope that we are getting better opportunities to learn new things Very at right. home. Very है ना? right. We can use our time in that also, that studies. So move to next question. Ma'am, many of the students were complaining that while writing the homework, they are having, well, actually the PDF is in small font size. They have to zoom, so they are having problem in writing and reading also. So what are your views, ma'am? Yeah, they are absolutely right.
I saw the PDF and the font size was small, but now the problem is resolved. Okay. Now we increase the font size, and now the assignment and PDFs are more readable and they are comfortable. To do this, open your mobile and do it nicely. During online study, I forget one thing. I want to say the students, as soon as your classes are going to start, before 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes, you take a bath with the cold water. You thoroughly wash your eyes with cold water and sit on the table and chair. Put your mobile in front of your eyes, 2 feet far from your eyes, and nicely. And your mobile should be kept on the stand, mobile stand. If you don't have mobile stand, it doesn't matter. You can keep books, notebooks, water bottle or other household article. You kept your mobile and you sit nicely on the chair. Your back must be straight, है ना? तो आपको लगेगा कि हम क्लास में बैठे हैं. You nicely dressed up, क्लास में बैठे हैं. मैंने कई वीडियोस, यू सी दिव्या, मैंने कई वीडियोस देखे हैं. बच्चे ऑनलाइन जब बैठे होते हैं, दे आर सिटिंग लाइक दिस, है ना? दे बैंड देयर बैक एंड सिटिंग लाइक दिस. पोस्चर इज़ नॉट राइट. तो मैं कहना चाहूँगी पोस्चर सीधा रखें, सही रखें, और पीडीएफ की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रिजॉल्व हो गई है. सो यू आर कंफर्टेबल नाउ. Whether it is physical or online class, right posture means it's Right correct, posture. right? Right. It should be. From 11th class student Shashank, his question is that he is attending 4 online classes and some videos also he is attending. Then notes he has to write and he has to read and write, and then furthermore studies he has to do. So there is a stress in eyes. Right. So I think Abhishek sir, you can give this answer in the better way. Yeah. That how can we resolve this problem for stress in eyes like. As ma'am rightly said ki first of all your body posture really matters. Whenever you keep a mobile in front of you, try to keep that in a eye length. It means ki your eye should be straight. It should not be down, otherwise you are going to have a neck problem. It's right now ma'am asked a question about eye stress, but I will cover all the health topics. You can have a neck problem, so body posture definitely matters, as ma'am rightly said. Specifically to eyes, what I will suggest ki you should not keep your mobile too close to your eyes, first thing. Second thing, try to reduce the brightness of the mobile. You should reduce the brightness of the mobile, that also going to help you. Third, I will not say ki everybody can afford that thing or you should go for it. There are lenses available, specs are available. And lenses? Specs. enlarger. Okay. स्पेक्स आर देयर. okay. सो उससे भी थोड़ी मोबाइल की जो रेडिएशंस वगैरह आती हैं, जो ब्राइटनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. मतलब यू कैन से इट्स 0 नंबर आई गेस, इट इज समथिंग लाइक दैट. तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. सेकेंडली, try to keep break in between the classes. Anyways, we are going to have break in between after 15 minutes break. Yes. So during this break, what you should do, you should wash your eyes with cold water, or I will use this word, splash your eyes with a cold water during the break. Then come to your seat, close your eyes and relax for few time until the next class starts. So this will help you in reducing. Most of the children are doing what they are doing between the break time. They are again using the mobile only. They are watching the game or they are playing the game or going through social media. So that is the main reason the stress is increasing on the eyes. If you take break, definitely we understand this is a COVID period. This is a tough period, and these are the things which is making this period a tough period. Otherwise, we are not going to call this a tough period. So we need to adjust somehow. I am not saying this is a good habit, but yes, we don't have any other option. So we have to accept the thing, and we have to manage accordingly the situation. Absolutely right, There sir. are many questions. Yeah. One more question, Abhishek sir, that students are willing to join online class and all. They are still after a few days lack of concentration is there. मतलब they are not able to watch the whole video. They are skipping that video. कि हाँ ठीक है, ये नहीं देखना है, हम आगे बढ़ते हैं. Like other मतलब videos. yeah, like other videos, they are just skipping that all videos. So lack of concentration, how can we resolve this problem? देखिए, Interest and concentration, yeah. मैम, lack of concentration is a very getting concentration is a big terminology. There are lots of things कि how to concentration is very it's not that easy thing to explain. Rather we should go into this thing कि हमारा concentration किन चीज़ों से टूटता है. We should focus on that कि there are certain things. First things, games can be one thing.
योर सब्जेक्ट, जो आपका पार्टिसिपेशन होता है सब्जेक्ट के अंदर, वो भी आपके कॉन्सेंट्रेशन को और इंटरेस्ट को रिड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्लास, मैथ्स सर पढ़ा रहे हैं, मैं इन्वॉल्वमेंट मेरा शो नहीं कर रहा हूँ, तो आप इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करोगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाएगा. इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन होगा ही नहीं. सेकेंडली, वी नीड टू टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स सराउंडिंग. मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किस रूम में बैठा हूँ, वहाँ पे आसपास की आवाज़ें कितनी ज़्यादा आ रही है. अगर मेरा रूम रोड की साइड में है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, मेरा कंसंट्रेशन टूटेगा. अगर मैं क्लास अटेंड करते समय आई एम सिटिंग इन द डाइनिंग रूम और हॉल और द मेन एरिया ऑफ द हाउस, तो ऑब्वियसली मेरा कंसंट्रेशन कैसे होगा, बिकॉज समवन इज गोइंग, समवन इज कमिंग, गेस्ट आ रहे हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स इज मूविंग. तो आई शुड सिट इन अ क्वाइट रूम इन माई नेक्स्ट. अगर क्वाइट रूम में भी मैं हूँ तो आई शुड नॉट स्टडी ऑन द बेड, बिकॉज बेड्स आर मेड टू स्लीप नॉट टू स्टडी. तो जब आप बेड पे लेट के पढ़ाई करते हो तो आपका ब्रेन स्टार्टेड इन दैट डायरेक्शन कि हाँ सोना है. तो यू शुड सिट ऑन चेयर एंड टेबल. मैम ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट थिंग कि हमें टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कंसंट्रेशन विल इंक्रीज. इट इज़ नॉट अ सिंगल पॉइंट कि कोई, इट्स नॉट अ मैजिक कि हम एक चीज़ से कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं. हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका इंक्रीज हो जाएगा. What are views, ma'am, about राइट, this? इज एब्सोल्युटली राइट. कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हमें फोकस तो करना पड़ेगा किसी चीज़ पर, है ना, तभी हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और विल होनी चाहिए. This is a question of again one student, that how can I make myself active for online classes? मतलब जो enthusiasm होता है वो gradually decrease होता जा रहा है, तो how should I increase that? जो physical classes में रहता था कि हाँ रोज़ स्कूल जाना है, I have to attend my daily classes, I have to meet my friends, तो ये सब कैसे होगा? And when they are skipping the online classes, तो they are just giving the excuses to parents that network problem है or low battery etc. So how can we make them active and all? Ma'am, this question seems to be similar to the last question. It is same कि आपका इंटरेस्ट लो हो रहा है, आपका एंथुजियाज्म लो हो रहा है. यू नीड टू फाइंड आउट द रीजंस कि ये क्यों लो हो रहा है. द ओनली रीजन इज कि योर लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट. जिन भी स्टूडेंट का, आई कैन बेट ऑन दैट कि जिन भी स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट लो हो रहा है, जो एंथुजियाज्म लो हो रहा है, उसके आप उन स्टूडेंट्स की हिस्ट्री में जाके देखिए नहीं है क्लास के अंदर. दैट्स फॉर श्योर. वो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं. तो जब रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करोगे, दे माइट बी डूइंग समथिंग लाइक दैट कि आज क्लास अटेंड नहीं की या हम आ गए, और मैनी स्टूडेंट्स आर डूइंग लाइक दैट कि सिर्फ उसको ऑन करके रख दिया एंड वी आर नॉट इन्वॉल्व. तो वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं आ सकता इन एनीथिंग. इट्स नॉट अबाउट स्टडीज, इन एनीथिंग व्हाट यू डू. अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट कि यस आई एम इंटरेस्टेड कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, आई ट्राई टू आस्क क्वेश्चन, आई ट्राई टू सबमिट माई वर्क, ये इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है. ये इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तो ऑब्वियसली आपका एंथुसियाज्म बढ़ेगा. तो इट वाज द सेम क्वेश्चन व्हिच वाज सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन. हाँ, that recreational activities. Yes, ma'am, sure ma'am. जैसे मैं यहाँ पे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अगर जैसे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप बच्चों को थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए टाइम दीजिए अपने फ्रेंड से बात करने के लिए. राइट, है ना. दे कैन मेक वीडियो कॉल ऑल्सो. बात करने के लिए टाइम दीजिए, और स्टडीज़ के बारे में वो लोग बात करें कि भी आपने होमवर्क कैसे किया, आपने कैसे किया, इसके बारे में कैसा है, इसके अलावा तुम क्या कर रहे हो, इसके अलावा, है ना, और क्या हम काम कर सकते हैं. तो अपने फ्रेंड्स को मतलब बात करने के लिए आप टाइम दीजिए. ऐसा नहीं है कि आपका टाइम ख़राब हो रहा है एंड यू डोंट गो देयर हियर एंड देयर, यू डोंट मेक ए वीडियो कॉल. पेरेंट्स को इतना स्ट्रिक्ट होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मिस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को. दे मिस देयर टीचर्स, दे मिस देयर स्टूडेंट्स, है ना. उनको आप अपने सिबलिंग्स से बात करने के लिए, खेलने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, तो वो कंसंट्रेट अपनी स्टडीज़ पे भी कर पाएंगे. होमवर्क के लिए दीजिए, हाँ, बैलेंस हो जाएंगे. तो ये पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगी कि यू मस्ट डू दिस. थैंक यू. So Abhishek sir, you can tell about the recreational activities and to tell more about the recreational activity, I will walk you through a chart and let's go to see the chart. तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि recreational activity कैसे हो सकती है. Let's go. So स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट के द्वारा कि
व्हाट आर द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हम कर सकते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम जब घर पे रहते हैं तो क्या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करें, क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो सकती है जो हम घर पर कर सकते हैं। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव कम अप विद दिस फन टाइम टेबल चार्ट। ये एक फन टाइम टेबल चार्ट है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज लिखी हुई हैं जो आप कर सकते हो, विच यू कैन डू एट योर होम। और इसको हमने थोड़ा फनी बनाने के लिए या थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने इसको वीकली डिवाइड किया। ये पूरे एक मंथ का चार्ट है और हर रोज अगर आप एक एक्टिविटी करते हो तो भी हमने यहाँ पे 30 एक्टिविटीज डिफाइन की है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट वीक होता है मंथ का और उसके मंडे को आप क्या कर सकते हो, आप बुक मार्क बना सकते हो घर पे। ट्यूसडे को आप ब्लॉक बिल्डिंग का कोई गेम खेल सकते हो। वेडनेसडे को यू कैन गो फॉर अ कुकिंग डे, मेक इट योर कुकिंग डे कि आप उस दिन कुकिंग करेंगे। थर्सडे को यू कैन प्ले सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यू कैन हैव अ चिलैक्स डे, जिस दिन आप कुछ ना करें, थोड़ा रिलैक्स करें। देन सैटरडे को यू कैन मेक योर एक्सरसाइज डे। संडे को यू कैन हैव योर ओरिगामी डे कि हम पेपर क्राफ्ट कुछ कर सकते हैं। देन सेकेंड वीक में यू कैन क्रिएट अ सोलर सिस्टम, सम क्रिएशनल एक्टिविटी, कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। Then on Tuesday of second week you can have a storytelling day. अब इसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन आकर you can have them that a session of storytelling. So this will improve your this presentation skill and storytelling skill. Then on Thursday of second week you can make some duff, what you can say, clay से कुछ बना सकते हैं आप, कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। Then you can have indoor game day. Then you can have make tent of bed sheet. आप कैसे, इसमें बहुत सारी है, puzzle solving, reading, singing day, dancing day, indoor basketball, painting day, gardening day, craft day, bubble solution बना सकते हैं आप घर पे। You can have a baking day and then finally once in a month you can have a clean your room day. So these are the recreational activities and I will request sir कि इसको एक बार zoom करें और थोड़ा सा बच्चों को एक बार पूरे just let them go through all the activities. So student, I guess you can see the whole chart and you can clearly see the activities which are mentioned in the chart. So these are the activities which you can do and for your convenience we will इसका एक लिंक हम नीचे डाल देंगे वीडियो के, ताकि आप उस लिंक पे जाकर भी इस चार्ट को अच्छी तरह से देख पाएँ, इसकी पिक्चर को अच्छी तरह से देख पाएँ। सो चिल्ड्रंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, लेट्स कंटिन्यू। तो स्टूडेंट, जैसा आपने देखा कि ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, हमने कितना अच्छे तरह से मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया है कि वीकली एक्टिविटीज़ हम कौन से डे पे कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो आई गेस इट इज़ गोइंग टू हेल्पफुल टू यू। Yes, very much helpful. Very much so, yeah, yes ma'am. So we move to our last question. This is from one of the parents, Mr. Pradeep Tak. As we they come to know that school are reopening, so parents are having a hitch to send their students to school, because when they are with friends and in other, so they are not following the COVID protocol. So how can we resolve that problem? Ma'am. एब्सोल्युटली राइट यू आर। बच्चे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, है ना, सही बात है ये, बट दिस इज़ आवर ड्यूटी, आवर टीचर्स ड्यूटी, स्टूडेंट्स को बताना कोविड के बारे में, इनके प्रोटोकॉल्स के बारे में। मास्क को पहनना है, अपने बैग को बिल्कुल इंटैक्ट रखना है, खुद के पास ही रखना है, खुद की किताबें खुद के बैग के अंदर ही रखना है। किसी को भी बुक्स को डोंट शेयर योर बुक्स और वाटर बॉटल्स और समथिंग एडेबल आर्टिकल इफ़ यू हैव, बट डोंट शेयर विद योर फ्रेंड्स, है ना। ये हम बताएंगे, आप लोग चिंतित ना होएं, ये हम सब बच्चों को बताएंगे, सारे टीचर्स को पता है, दे ऑल नो। आप देखिए, हम भी तो रोज़ाना आ रहे हैं स्कूल, वी ऑल आर कमिंग टू स्कूल विद कोविड प्रोटोकॉल, है ना। तो हम लोग जब आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपके बच्चों को भी कुछ नहीं होगा। क्यों दिव्या? क्या सर? कुछ नहीं होगा। तो आप निश्चित रहिए, ये हमारी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएंगे। थैंक यू। मैम, आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो कोविड ड्यूरेशन थी, ये हमारे लिए इट इज़ समथिंग लाइक दैट ऑन एंड ऑफ। हम थोड़ा लॉकडाउन हुआ, देन इट गेट ओपन एंड वी आर बैक टू वर्क, फिर अगेन लॉकडाउन। तो हमारे लिए एक ऑन ऑफ की तरफ था। बट इफ़ यू लुक फ्रॉम द स्टूडेंट परस्पेक्टिव, उनके लिए तो कंटिन्यूस 1.5 साल से लॉकडाउन है। दे आर नॉट गेटिंग सोशलाइज इस पूरे 1.5 साल में। तो जस्ट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर वो सोशलाइज नहीं होंगे,
तो डेफिनेटली उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और जो सारे ये जो प्रॉब्लम आ रही है इनमें से काफ़ी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है कि आप सोशलाइज नहीं हो पा रहे हो। एंड द बिगेस्ट जो हमारे साइकोलॉजी के अंदर एक इज सेइंग कि जो बिगेस्ट चीज़ हो सकती है कोविड के अंदर वो ये हुआ है कि एज अ ह्यूमन हमें हमेशा सिखाया गया है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और इस कोविड में हमें वो कह दिया गया कि वो नहीं करना है। तो जो हमारी चीज़ हमारे डीएनए के अंदर है, जीन्स के अंदर है, अगर वही आपको नहीं करने दिया जाएगा तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इनटू स्ट्रेस। सो आई विल मेक श्योर कि यस डेफिनेटली एज मैम सेड कि हमने कोविड के सारे प्रिकॉशन लिए हैं एंड दिस इज़ द हाई टाइम कि नाउ वी शुड इंट्रोड्यूस आवर चाइल्ड विद द वर्ल्ड। उनको कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा एंड प्रिकॉशन के साथ साथ हमने वी हैव मेक श्योर कि सारे टीचर वैक्सीनेटेड हैं, सबकी सेकेंड एवरी स्टाफ इज वैक्सीनेटेड। Sanitizer, hand wash, all classrooms are clean now. All things. A doctor's team we also have, so need not to be worried. Yeah. Don't bother Yes, about it. absolutely right, Yeah. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Abhishek. थैंक यू मैम। It was a nice, Thank you again. nice and Thanks question for- answer yeah. session. I hope your most of the queries has been answered by Principal Ma'am and our psychologist sir, Mr. Abhishek sir. And I think now you will be going in a new track and resolve your problems. So thank you viewers for watching our question answer session. Thank you.